Okay, good morning, bachcho. In this video, we are going to discuss about the question which I have given you in your previous assignment, and moreover, the one very much important thing which I want to mention here. And this question, which is I am going to solve here, it is you can find in your NCRT example also. It is one of the important question, and it can be the part of your the hot question. You can understand this. Okay, this one is an important question. So make sure to do this question in your notebook also. And this question you can see from your previous assignment. Let me just get your assignment that I have given you. The assignment I have mentioned this question. Let me find out page. Okay, this is the question. In the given figure, AB is a diameter of circle and CD is a chord equal to the radius of circle. See, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर. There is a circle. एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने आपके लिए. Right? This is the circle. और CD इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ पर. I hope कि this one is visible to all. इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया. Now my center is here. Let me draw once again. This is my diameter. Okay, and this one is like this. ये diameter है, आपको center लेना पड़ेगा. So here is center and OC, line from center to circle is called radius. There is one more line CD. Let me draw the question, and after this I will read the question for you, and moreover you can get the answer from the PDF also, which I have given you in the previous class. So this is the question, and join audio also. So this was the question. I think this one is the correct one according to the question. AB is a diameter. You can see AB is a diameter. And CD is a chord equal to the radius, and CD is a chord which is equal to radius. थोड़ा बनाने में गड़बड़ लग रहा है, but this is equal to this, and all three sides are equal because OD is a radius and OC is also radius, and which is also equal to the chord CD. And AC and BD when extended, AC और BD को extend करने पे they are meeting at point E. बाहर की तरफ देखो कट कर रहा है ना, यहाँ पर E पर एक these two lines are intersecting here. यहाँ पर काट रही है दोनों लाइन एक दूसरे को. And our question is AEB आपको शो करना है कि AEB जो फॉर्म कर रहा है, ये रहा AEB, ये आपको 60 डिग्री लेके आना है. So we have to find out that AEB is 60 डिग्री. तो एक काम करते हैं कि AEB के लिए आपको एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा जो AEB हो जाए, मतलब वहां तक पहुंच जाए. Although आपके पास ये वाला OD, OC और CD all are equal, that means कि all the angle are 60 degree, है ना? सारे 60 होंगे ना? When all three sides of a triangle are equal ना, it is an equilateral triangle. You will get all the angle equal to 60 degree. What extra we can do here? एक काम और कर सकते हैं कि ना एक ऐसा ड्रॉ कर लो ऐसे, either CD को मिला दो या AD को मिला दो या फिर CD को मिला दो. इससे क्या हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा. और वो पर्टिकुलरली वो जो E वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, E वाला पार्ट, वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में ADE आ गया, ऐसा कुछ दिखाई देगा. दिख रहा है ना? तो बस while you will do the solution for the question, you write here draw या join करो, join AD को ज्वाइन कर दिया मैंने. I did here a kind you can say construction कर दिया मैंने. और I wrote here, since all the three sides OC is equal to OD is equal to CD, equal sides होगी. These sides are equal. और ये provided भी था मुझे क्वेश्चन में. So जो ट्रायंगल बन गया ना COD, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. Then we can say triangle COD is an equilateral.
ठीक है, तो ये आपका इक्विलेटरल आ गया। ठीक है, और उसके बाद अब सवाल ये है कि अगर आपने ये डायमीटर है तो ए डी बी 90 डिग्री होगा बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री एंड ए डी ई भी आपका 90 होगा। सो आपको लिखना है कि ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी आपके पास डायमीटर हो गया, दिया है डायमीटर दिया। सो what you will get here, you will get ADB which is same as ADE और मैं तो इसको लिखूंगा 90 डिग्री और रीजन होगा एंगल्स इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। भाई सेमी सर्कल का जो एंगल बनता है ना वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इट इज द पार्ट थ्योरम, इट इज द शॉर्ट थ्योरम क्लॉरली ऑफ डीएमटी। डिग्री मेजर थ्योरम में शायद आपने 2 बार से पढ़ी थी, एंगल इन सेमी सर्कल आर इक्वल और एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। तो मुझे तो ये पता चल गया कि ये वाला जो पार्ट है ना ए डी ई वाला पार्ट है उसका ये वाला दिस वन इज 90 डिग्री। अब बस किसी भी तरीके से ये वाला फाइंड कर लेते हैं हम। कहीं से कोई लिंक अगर आपको मिल रहा हो तो आप देखिए, तो शायद उससे हेल्प मिल जाएगी हमें कि सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है उसकी बेसिस पे। तो फॉर दैट आपको ना देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा। जैसे CD दिख रहा है आपको, CD को ध्यान से देखो, CD आर को ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था डिग्री मेजर थ्योरम और एज पर द डिग्री मेजर थ्योरम एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हिच इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आप कहोगे सर ऐसा दिख कहाँ रहा है, सी अब आप चेक करो CD का आर्क है कि नहीं है? अब CD से एक लाइन जा रही है COD, दिखा आपको? चेक करो, देखो CD से, मैं CD से पढ़ रहा हूँ, CD आर्क है COD, तो आप क्या कहोगे, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी किसी आर्क ने, ये आर्क है, छोटी सी आर्क है बस, इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया 60 डिग्री का, तो एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे आ गया 60 डिग्री। और वही जो होगा सेम आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में कोई एंगल बनाएगा तो द सेंटर एंगल विल बी डबल। दिस इज डिग्री मेजर थ्योरम। और याद करो ना डिग्री मेजर थ्योरम, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे बना एंगल कितना दिख रहा है आपको, 60। अब ये CD आर्क है तो उसके बाद में तो पूरा का पूरा आर्क तो CD आर्क का उल्टा ही होगा, ये वाला रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस होगा। तो C से फिर से पढ़ता हूँ, CAD, तो CAD तो ये बन रहा है ना क्लियर आप। सो आप लिखेंगे कि सिंस COD, द एंगल COD व्हिच इज ट्वाइस ऑफ CAD, आराम से देख लेना, आराम से समझ के समझना, देखना आपको आ जाएगा समझ में। COD जो होगा, दिस एंगल COD which is twice of CAD by DMT, डिग्री मेजर थ्योरम का इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चे। as per the degree measure theorem we are getting this equation and COD is what, COD is 60 डिग्री, तो CAD कितना आ जाएगा, you will get CAD, आपको CAD मिलेगा 30 डिग्री का। दिस इज द नीड ऑफ आवर क्वेश्चन। अरे ADE पर आइए, नाउ यू विल सी योर ट्रायंगल, नाउ यू विल सी योर ट्रायंगल ADE, oh yes, and triangle ADE. so when you will see this triangle definitely आपका आंसर आ गया है। कैसे, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला पार्ट और एंगल इन सेमी सर्कल तो मैंने 90 बोल ही दिया था आपको, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज दिस व्हिच इज CEB, दैट इज द नीड ऑफ आवर क्वेश्चन। CED तो पूछा ना आपसे, हां AEB वही हो गई बात, AEB बोल दो चाहे इसको E बोल दो, तो मैं अब इस तरह से मैं इसको एक डिनोट कर देता हूं 1 और इसको डिनोट कर देता हूं 2 और दिस वन इज ADE, तो आप लिखेंगे ADE प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो हो गया ना बच्चे, ये दिस वन इज 90 डिग्री
और ए वाला 30 डिग्री एंड बाकी रहेगा 2 वाला एंड द सेकेंड नंबर एंगल जो 2 होगा दैट विल गेट व्हाट 180 minus 120 and you are getting your angle 60 डिग्री और आप उसका नाम लिखो जो आपको चाहिए था AEB is equal to 60 degree. So this is the question और ये बहुत important है and this will get the question from your NCERT example also. एग्जाम्पल में भी करा हुआ है, अगर आपको ये तरीका समझ में आता है तो आप ऐसे करिए, अदरवाइज जैसे समझ में आता है वैसे करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू टू अंडरस्टैंड दी आंसर सोल्यूशन समझ में आना चाहिए आपको। आई होप कि और कोई प्रॉब्लम है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज मैं कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से करा देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, देयर इज आई हैव मेनी क्वेश्चंस। असाइनमेंट का अगर कोई क्वेश्चन है व्हेन यू फील लाइक दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग पर्सनल मैसेज एट माय नंबर, ठीक है। सी आई हैव short some sort question also. Let me remove this from here. अब देखते हैं कि कुछ और भी हैं रिलेटेड है, कुछ जो स्मॉल क्वेश्चन है which are based on to find out the value of x and y, उस तरह के क्वेश्चन भी अच्छे और इम्पोर्टेंट होते हैं। Like in the same manner I will draw a circle here. एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, आई होप कि विजिबल होगा आपको। Here I am taking a center, ऐसे ड्रॉ किया, इसको ऐसे ड्रॉ किया। आप सारे क्वेश्चंस कॉपी में जरूर करना इसको, ठीक है। कॉपी में जब करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको ये रहेगा कि आपने किया, यू विल फील लिटिल कॉन्फिडेंस कि दीस क्वेश्चंस आर फेमिलियर टू यू। यहाँ पर 40 डिग्री है मेरे पास एंड दिस वन इज 30 डिग्री एंड यहाँ पर आपको B मिलेगा, यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, ठीक है। The question I will provide it today in the PDF form in your group from where you can get the question. I have make an assignment today for about 9 questions, right? तो 9 questions है, उसको बना लेना। अगर प्रॉब्लम आती है 1-2 क्वेश्चन की तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। So मैं बात कर रहा था कि एक फिगर आपके सामने दिख रहा है, इसमें लिखा है कि मेजर ऑफ आर्क ADC जो है आपके पास वो आपको फाइंड करना है। ADC दिखता है यहाँ पर, एक D बना दो यहाँ पर, ऐसा मैंने D बना दिया, ऐसा दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ADC यार हो गया ना, तो इसका मेजरमेंट कहाँ पर है? इसका मेजरमेंट तो सेंटर पर है। सो आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ आर्क। वो हमारा क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड मेजरमेंट आर्क ADC। अब मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC का मतलब हो गया, मतलब इनडायरेक्टली वो AOC पूछना चाहता है आपसे, एंगल AOC पूछना है आपसे। तो जैसे भी अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 30 है तो these two sides are equal ना, because the line from center to circle is called radius. A line from center to circle is called radius. This one is center. Oh, center को लिखा हुआ तो ये भी radius है। तो 30 यहाँ 40 है, यहाँ 30 है। When these two sides are equal, their base angle are also equal. ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर यहाँ 30 है तो these two sides are equal, तो ये 30 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और क्या मिल गया आपके पास? आपके पास आ गया ADC, है ना। सो व्हेन OA is equal to OB and OC is equal to OB, क्यों इक्वल है? बोथ ऑल इन द पेयर यू कैन से दीज आर ADI, देन आपके एंगल भी तो बराबर हो गए। कैसे? OAB equals to OBA, यही होगा ना बच्चे। और इसके अलावा OCB is equal to OBC, ये वाला 30 का पेयर हो जाएगा और ये वाला, दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर कह सकते हैं इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मतलब एंगल बराबर होते हैं जब साइड बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 7.2 और 7.1। अब देयरफॉर अब आपको मिलेगा ABC and ABC equals to 40 plus 30, 70 आ गया। तो ये वाला 70 हो गया पूरा। और आपने क्या पढ़ा था? DMT क्या कहता है कि किसी भी आर्क का मेजरमेंट सेंटर पे जो होता है वो सर्कमफ्रेंस अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल
सेगमेंट में जो भी पॉइंट पर एंगल बनेगा उससे डबल होता है। तो हम लिख देंगे जो आपको पता है, we know that what you know that we know that AOC का मेजरमेंट जो होगा it will be the twice of APC as according to the theorem DMT, as according to theorem DMT, and AOC का वैल्यू हमारा क्वेश्चन था, this was our question, and as per the need of the question you will write ABC equal to 70 degree. Definitely आपको फाइनली आंसर तो मिलेगा, you will get your answer equal to 140 degree. यही आपका मेजरमेंट, M stand for measurement, मेजरमेंट ADC आपके पास कितना आ गया, मेजरमेंट ADC आपके पास आ गया 140 डिग्री। तो ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस पे बेस्ड आ रहे हैं, या तो डिग्री मेजर थ्योरम पे बेस्ड आ रहे हैं, या फिर सम ऑफ इधर पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट 180 डिग्री पे बेस्ड आ रहे हैं। तो थ्योरम पे बेस्ड हैं, जितना आप सोच रहे हैं उतना है नहीं मुश्किल। ये आप सारे कॉन्सेप्ट ऑफ जो भी सर्कल से रिलेटेड आ रहे हैं वो सारे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। डेफिनेटली ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होंगे वो उन्हीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। लाइकवाइज स्टार्टिंग में हमने 6 थ्योरम की थी, जैसे अगर आप एक एक करके मेमोराइज करें तो आपको सारी थ्योरम के बारे में पता चलेगा। इनिशियली हमने इन द बिगनिंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास व्हेन वी हैव स्टार्टेड सर्कल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई स्टार्टिंग की थ्योरम में स्टार्टिंग की 6 आती हैं, जैसे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, when two chords are equidistant from center they are equal in length, equal chords subtend equal angle at center, if the chords are subtending equal angle at center they are equal also, a perpendicular drawn from center to circle bisect the chord, है ना, a perpendicular drawn from center to chord bisects the chord, if a line drawn from center to chord bisect the chord is perpendicular to the chord, right। ये स्टार्टिंग की 1 2 3 4 5 6 हैं, जो डायरेक्ट है उसकी रिवर्स है, फिर डायरेक्ट है फिर रिवर्स है, और उसके बाद फिर डायरेक्टली हम उस पर डीएमटी पे आ गए। डीएमटी के बेसिस पे 2 और आए थे हमारे पास। कैसे आए थे, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री एंड एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये 2 हो गए। इसके बाद फिर हमने लास्ट पढ़ा था द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट इज 180 डिग्री, और इसका एक कन्वर्स है, आप उसे लर्न कर लो। कन्वर्स क्या था, when a quadrilateral having the sum of either pair 180 degree then quadrilateral is cyclic। तो ये कुछ हैं, कुछ 6 7 8 9 10 के करीब है, एंड दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज फॉर इन केस ऑफ द सर्कल चैप्टर। आप इन्हें अच्छे से कॉपी में करिए, लर्न करिए, समझिए, एंड वट एवर द असाइनमेंट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम माई साइड, मेक श्योर टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन योर कॉपी ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।